All right, great. I'm fantastic too. Thank you so much for asking me. I'll just quickly add Neelam ji as well from Jalgaon. All right, so I think today was a different time. I hope it did not bother you much. So I'll just quickly greet everyone. Before even starting, I'll just wish all of you a great afternoon. Good afternoon, everyone. How are you doing? All well? Yes, sir. Okay, great. Great, wonderful. Neelam ji from Jalgaon, how are you doing? Fine? Just fine or better than fine? Better than fine. Okay, you can say as what Neelam ji said the other day, ecstatic, I'm feeling fantastic, I'm feeling great, I'm feeling awesome, right? You can always use these words. That's to show that it's not just fine, but it's more than that, right? Every word has its importance. You can always say, I'll just write those quick words here. So, ecstatic is what you could say. You could say fantastic, fantastic. You can say, I am you can say I'm ecstatic, I'm fantastic, I am awesome. Right? Awesome. AWESOME. Awesome means like great, perfect, right? And you can also say I'm impeccable. I'm impeccable. That's a new word. IMPECCABL. Impeccable. I am impeccable. Impeccable means great, wonderfully great, right? Impeccable. How are you doing? Impeccable. How are you doing? Ecstatic. How are you doing? Fantastic. How are you doing? Awesome, right? Instead of simply saying I'm doing fine, I'm doing good, I'm doing okay. But if such is the case, you can always put in what you are really feeling. But then, if such is the state that you are really feeling elated, elated is like extremely happy. Elated. If you're really happy of the fact to speak English and join this little batch, you can always say, I'm feeling elated, I'm feeling awesome, ecstatic. You can always say, I'm feeling fantastic, I'm feeling impeccable, impeccable. Is that okay, everyone? Right? Okay, so in today's session, we'll quickly move ahead with the pronunciation part of three people. One is John, one is Priya, and one is Anjali. And then as I promised to you, we'll be working today on tenses. आज हम tenses पे काम करेंगे, especially हम काम करेंगे present tense पे, simple present जिसको बोलते हैं, फिर हम काम करेंगे present continuous पे, और फिर हम काम करेंगे present perfect पे. इन तीन पे काम करेंगे. थोड़ा सा इंटेंसिव रहेगा सेशन, ताकि वीकेंड के 2 दिन के आपके रिलैक्सेशन है, आराम से आनंद उठाइएगा, बट साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, राइट? सो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको कंटेंट दूं मैं अच्छा सा टेंसेस का, ताकि आप वीकेंड पे अच्छे से काम करें टेंसेस पे, और फिर जब हम सोमवार को मिलेंगे तो आप टेंसेस में बात करेंगे मुझसे. आई आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई आस्क यू थिंग्स टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इन इंग्लिश. इज दैट ओके? राइट? चलिए, great. So we'll quickly start. So yesterday we read this text. Yesterday we read this text. Yesterday we read this text. What does that mean? Neelam ji from Jalgaon. Yesterday we read this text. क्या मतलब है इसका? कल हमने ये पढ़ा था टेक्स्ट. Very good. कल हमने ये टेक्स्ट पढ़ा. राइट? पढ़ा या पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है. कल हमने टेक्स्ट पढ़ा था, या कल हमने ये टेक्स्ट पढ़ा है ना? कल हमने टेक्स्ट पढ़ा. हाँ सर, हमने कल ये टेक्स्ट पढ़ा. अगर मुझे कहना होगा धीर जी, हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है, हमने ये टेक्स्ट पढ़ लिया है. अभी देखिए टेंसेस पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूं, ताकि आपको जब मैं टेंस फॉर्मली करवाऊंगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बातें समझ आ गई होंगी, राइट? सो अगर मुझे कहना है क्या हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है, तो ये अगेन पास्ट टेंस है, लेकिन ये वर्तमान तक आता है. क्या हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है, तो उस केस में मैं बोलूंगा, एनी गेसेस, एनीवन? कोई हेल्प कर सकता है? मैं क्या प्रश्न पूछूंगा या क्या बात बोलूंगा? नीलम जी, नीलम राठौर जी, एनी गेसेस? क्या बोल सकते हैं अगर मेरे को ये प्रश्न बोलना है? Have we read the text? Very good, wonderful. Have we read the text? Great. Have we read the text? Right. क्वेश्चन है तो इसको यूं लगाते हैं. Very good, बहुत अच्छा आपने बोला. यहाँ पे we read और यहाँ पे have we read, बिल्कुल ठीक है. इन दोनों वाक्यों को लिख लीजिए, बिकॉज ये है हमारा सिंपल पास्ट जो आज हम देखेंगे, और ये जो है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. Present perfect. I'll just, yeah. Okay. So this sentence in English, when you say yesterday we read this text, कल हमने टेक्स्ट पढ़ा, कल हमने टेक्स्ट पढ़ा, राइट? पढ़ा या पढ़ा था भी बोल सकते हैं, that also makes sense. But जब हमको कहना है have we read the text,
क्या हमने ये टेक्स्ट पढ़ लिया है? तो उस केस में हम कहेंगे, जो नीलम राठौर जी ने एकदम सही कहा, हैव वी रेड दिस टेक्स्ट और हैव वी रेड द टेक्स्ट, दोनों बात ठीक है। दिस मतलब ये वाला, द मतलब अगेन यही की बात, इसी की बात हो रही है, तो मैं दिस भी बोल सकता हूँ, हैव वी रेड दिस टेक्स्ट, राइट? इस तरीके से, हैव वी रेड द टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट पढ़ लिया, अन्यथा ये एग्जैक्ट यही वाला टेक्स्ट, हैव वी रेड दिस टेक्स्ट। ऊपर वाला जो टेंस है, आप लोग सब ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट, और जो नीचे वाले जिसमें हैव लगता है, विशेष रूप से 3 लाइन खींचना उसके नीचे ताकि आप भूले ना। हैव लगने का मतलब ही है कि वर्तमान तक आपने ट्रैवल किया है, और इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट हम इसको क्यों बोलते हैं धीर जी? क्योंकि ये खत्म हो चुका है, हर चीज जो पूर्ण हो चुकी होती है उसको बोलते हैं परफेक्ट। एनीथिंग दैट फिनिशेस यू कॉल इट परफेक्ट। जब कभी भी टेंसेस पढ़ते समय भविष्य में भी आपको कभी परफेक्ट नाम दिखाई देगा टेंस के नाम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा परफेक्ट का मतलब कि वो चीज पूर्ण हो चुकी है। और उसके साथ प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि ये वर्तमान तक आके खत्म हुई है, राइट? सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो इसलिए जब मैंने कहा क्या हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है, तो है लगाने का मतलब था कि आई हैव ट्रैवल्ड टिल प्रेजेंट पॉइंट एंड आई हैव टोल्ड हैव वी फिनिश्ड, हमने खत्म कर लिया है, हैव वी ईटन, हैव वी सीन, हैव वी स्पोकन। तो हम क्या करते हैं, वर्तमान तक आते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में यदि कोई बात हुई, हमने खाया क्या, हमने देखा, हमने बोला, आपने लिखा, उन्होंने सुना, आपने पढ़ा, जब हम सिर्फ इस प्रकार की बात करेंगे तो हम बोलेंगे वो है सिंपल पास्ट। उसके अंदर क्या लगता है, हमारा सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का। ये मैं अभी आपको डिटेल में सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, एकदम से हम इसमें उतर गए हैं, और ये थर्ड फॉर्म है। सो आई कैन सी दीपमाला जी, गुड आफ्टरनून दीपमाला जी, हाउ आर यू डूइंग? ऑल वेल? And you? I'm doing perfectly fine, thank you. Today we had to do it at different times, so I hope that did not bother you much. But I can see that you all have joined in. That means even if it bothered you, learning English was more of a priority for you. I feel so. So that's great. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए कि यहाँ पे जो read है, जो to read होती है क्रिया, to read, वो यहाँ पे रेड के रूप में आई है। रेड, जो लाल रंग होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रेड, लाल रंग, दैट इज द साउंड रेड। और यही साउंड यहाँ पे रेड, इसको रीड कभी नहीं पढ़ना, राइट? रेड पढ़ना है, क्योंकि ये पास्ट है यहाँ पे, सिंपल पास्ट, और यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों स्थिति में ये पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि yesterday we read this text, मतलब कल हमने टेक्स्ट पढ़ा, तो यानी बात पास्ट में है, जिसका वर्तमान से आई थिंक दीपाला जी, कैन यू बी ऑन म्यूट प्लीज, वी गेट सम बैकग्राउंड स्कोर, दैट्स व्हाई, थैंक यू। सो जब हम बात करते हैं ना वी रेड दिस टेक्स्ट, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमने टेक्स्ट पढ़ा, और ये पास्ट की बात है, इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं धीर जी, हैव वी रेड दिस टेक्स्ट, क्या हमने ये टेक्स्ट पढ़ लिया है, तो जैसे आप है लगाएंगे ना हिंदी में, तो आपको फील हो जाएगा कि अभी प्रेजेंट में आके हमने इस बात को खत्म किया है। डज दैट मेक सेंस? इज दैट ओके? ठीक है, समझ में आता है थोड़ा बहुत? चलिए, तो ये इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे जब मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा अभी 5-10 मिनट के अंदर। उससे पहले हम थोड़ा सा आज प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं फटाफट से। ये हमने टेक्स्ट पढ़ लिया था, आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट पे। आज हम बात करेंगे प्रिया की और अंजलि की, तो आप लोगों से मैं पढ़वाता हूँ मेला। तो कल मुझे याद है, आई थिंक धीर जी आपने पढ़ लिया था, आई थिंक कृतिका जी हैड रेड, सो टुडे वील आस्क नीलम जी, नीलम राठौर जी टू रीड दिस होल टेक्स्ट फॉर अस। ओके, आर यू रेडी? नीलम जी, नीलम राठौर जी? Yes, sir. Yeah, please. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I'm a student at ABC School. I'm in the 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. I like to participate in school science fairs. In my free time, I love reading books and drawing. I also play basketball with my friends. I want to become a doctor in the future. I am very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I also enjoy music and often listen to it while studying. Yeah. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer at a local animal shelter on weekends. Helping animals gives me great joy. I'm very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive
of my dreams. I'm excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you. Okay, wonderful. Very good try. I think it's really impressive what you just read. बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत clean था, clear था. Largely everything was we could understand very easily. There are just few pronunciations here and there. We need to fix them up. One was this word. One was this word, which you reread over here as well. And then there is one word that you try to read it differently. I saw it over here. I did see it over here as well. And then this word. चलिए एक बार फिर से प्रयास कीजिए नीलम राठौर जी, ये जो मैंने अंडरलाइन किए अगर आप देख पा रहे हैं शब्दों को, एक बार पुनः इनका उच्चारण कीजिए एक बार. You'll have to unmute yourself, नीलम जी. हाँ. Especially Yeah. biology. Yeah. So yeah. इसको एक बार वापस पढ़िए. Especially. Yeah, especially, right? Especially, आपको S करके पूरा उसका साउंड है. Specially, right? Specially, Especially. right? What about this word? Biology. Biology. बोलिए, biology. Biology नहीं, biology. हाँ, logy नहीं, biology. आप क्या कीजिए? आप G को अलग बोलिए. Biology. Very good. अभी बेहतर था. Biology, right? Very good. Biology. और यहाँ पे यहाँ आप इसको पढ़ रहे हैं A. आपने दोनों जगह A पढ़ा. हम इसको A नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं अ. Everyone, just unmute and say अ. Exactly. ए जो लेटर होता है जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको हम पढ़ते हैं अ जनरली. लेकिन इसको एक कब पढ़ेंगे? जब मेरे को एक संख्या कहनी पड़ेगी. जब मैं इसको एक संख्या कहता हूं और मैं फिक्स करना चाहता हूं, उस स्थिति में मैं उसको ए पढ़ूंगा. जैसे आई वांट टू हैव अ पिज्जा. मैं एक पिज्जा खाना चाहता हूं. आई वांट टू हैव अ पिज्जा. आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा. किसने कहा हाउ मेनी पिज्जा? आई वांट टू हैव ए पिज्जा. आई वांट टू हैव ए पिज्जा. तो मैं जब वापस स्पष्ट करूंगा तब मैं ए बोलूंगा उसको, यानी एक. ठीक है, तो वो है तो वो भी एक ही, लेकिन जब हम नॉर्मल वे में बोलते हैं तो उसको अ पढ़ते हैं अ. लेकिन जब मैं उसको स्पेसिफिक करना चाहता हूं, उस स्थिति में मैं उसको ए बोलूंगा, जब सामने वाला शायद समझ नहीं पाया या मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो एक है. ओके, और ये शब्द तो हमें पता ही है. नीलम जी, अपॉर्चुनिटीज. या बताइए, और प्रयास कीजिए एक बार फिर से. अपॉर्चुनिटीज. ओके, एनीवन एल्स? धीर जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? Opportunities. Voila, exactly. Opportunities, right? So opportunities है ये, so इस पे हमें ध्यान रखना है. And not opportunities, opportunities, right? Opportunities. Very good. Opportunities and not opportunities, right? So that is good. Great. So अच्छा है आपने बोला. इसको एक और यूएस स्टाइल में बोलते हैं opportunities. ट की ध्वनि आती है opportunities, पर आपको इतना नहीं कॉम्प्लेक्स करना. आपको तो सिंपल बोलना है ब्रिटिश स्टाइल में opportunities, right? क्लियर है? ओके, चलिए. सो दैट्स गुड. अब हम फटाफट से यही टेक्स्ट सुनेंगे दीपमाला जी से. दीपमाला जी फटाफट पढ़ दीजिए इसी टेक्स्ट को. अब प्रयास कीजिएगा कि आप इन शब्दों में सुधार करके पढ़ें. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I'm a student at ABC School. I'm in 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. I like to participate in school science fairs. In my free time, I love reading books and walking. I also play basketball with my friends. I want to become a doctor in the future. I am very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I also enjoy music and often listen to it while studying. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer as a local animal shelter on weekends. Helping animals to me great joy. I am very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive of my dreams. I am excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you.
Wonderful. I think that was very good. You really paid attention to all the changes and you well incorporated them in your speaking part. So that was great. I'll just quickly read the whole thing out for you. एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग मेरे साथ मन में पढ़ें और जहां जहां परिवर्तन है मेरे और आपके पढ़ने में उस पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बाकी सब ठीक है अगर आप सेम पढ़ रहे हैं तो. So it goes like this. Whenever you read any text, ensure that you are Priya. You are that person. You have to give life to that text. That's how you would present yourself someday. अपने बारे में जब बताएंगे तो आप खुद ही हैं, तब तो आप उतनी एनर्जी, उतना उत्साह, उतना इंटोनेशन, उतना वेरिएशन डाल के बोलेंगे. तो हमेशा प्रयास कीजिए कि कोई भी टेक्स्ट आपको मिले उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को इन्वॉल्व करके पढ़ें. द रीजन इज, इसको बोलते हैं हम स्टोरी टेलिंग. आजकल आपने सुना होगा स्टोरी टेलिंग एक माध्यम होता है जिसके तरीके से हम लोगों को एंगेज करते हैं. कोई भी बात होती है, आजकल प्रोडक्ट्स भी जब बिकते हैं या आप कोई बिजनेस में हैं, आप कोई भी अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके साथ एक स्टोरी अटैच करते हैं. स्टोरी अटैच नहीं करेंगे तो इमोशनल क्वोशंट नहीं आ पाएगा, इमोशनल एक एस्पेक्ट नहीं आ पाएगा उसमें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वो तभी आता है जब हम हमारे उच्चारण में उतार चढ़ाव लाते हैं, उसके अंदर हमारे इंटोनेशन में उतार चढ़ाव लाते हैं. उच्चारण तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी precise, but then otherwise you have to really make the other person feel engaged in what you are narrating, right? तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपकी रीडिंग स्किल्स है, उनमें आप काफी सारे इंटोनेशंस और आप ऐसा महसूस करवाएंगे कोई आपको एक्चुअली में सिंसियरली सुन रहा है. ओके, इट गोज लाइक दिस. एवरीवन प्लीज रीड विद मी इन योर माइंड. इट गोज लाइक दिस. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I am a student at ABC School. I'm in the 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. I like to participate in school science fairs. In my free time, I love reading books and drawing. I also play basketball with my friends. I want to become a doctor in the future. I'm very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I also enjoy music and often listen to it while studying. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer at a local animal shelter on weekends. Helping animals gives me great joy. Helping animals gives me great joy. I'm very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive of my dreams. I'm excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you. Right? So everyone, you have to make sure that you speak it in a way that you are Priya yourself and you are trying to say what Priya wanted to say. Is that clear everyone? समझ में आ रहा है आप सभी को? धीरे धीरे होगा, बट डोंट वरी. बट आप धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम किया कीजिएगा. यदि आपके आसपास आपको ऐसी स्टोरी बुक्स मिलती हैं जो आपके परिवार में बच्चों की स्टोरी बुक्स अंग्रेजी की, उनको लीजिए, उनको पढ़िए. उसमें देखिए कि वो छोटी सी कहानी है, एक गोट के बारे में, एक कैट के बारे में, एक डॉग के बारे में, एक बॉय के बारे में, एक गर्ल के बारे में, उसको आप रीड अलाउड. रीड अलाउड मीन्स कि आप उसको जोर से पढ़ें, ऊंची आवाज में पढ़ें, अपना उच्चारण खुद सुने, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें. राइट? और स्टोरी टेलिंग का अगर आपके आसपास का ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को सुना सकें स्टोरी, सो प्लीज इसको जरूर कीजिएगा. स्पेशली विद योर किड्स, इफ यू हैव देयर स्टोरी बुक्स एंड एट द नाइट टाइम व्हेन यू आर देयर ड्यूरिंग द बेड टाइम स्टोरीज, मेक देम सिट अलोंग विद यू एंड रीड स्टोरीज अलाउड फॉर देम. और आप भी उच्चारण अच्छा कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो भी उच्चारण करें. एंड कुछ शब्द आपको इधर उधर लगते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा. इज दैट ओके? Alright, so quickly let's move ahead. Now I'll request first Neelam ji from Jalgaon and then Dheer ji to read this one. यहाँ तक आपको पढ़ना है. Nice to meet you there. चलिए, so Neelam ji from Jalgaon, could you read the whole text for us in English? Yes, sir. Yeah. Hello, my name is Anjali. I am 40 years old. I am a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer, and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals, clean the house, and help my children with their studies. I enjoy cooking, often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, I like to read books and listen to music. I am very active in my community and often participate in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. My family is very important to me and I love spending time with them. We often go on picnics and outing together. I am very organized and manage my time well. Nice to meet you. Okay, that was very interesting, very nice.
मुझे तो ऐसा लगा कि अंजलि का नाम बदल के अगर आपका नाम डाल दिया तो आपकी कहानी है कुल मिला के, और बस जयपुर की जगह जलगांव करना है, और आपका ही पूरा इन्होंने राइटअप दिया है। मैं हाउस वाइफ हूँ, आपके भी हस्बैंड इंजीनियर है, आपने बताया था, एंड यू हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन एंड यू लव कुकिंग, सो आई थिंक somehow it was your own self description. What a chance, what a coincidence. Chali, that was great. I think largely you read everything nice. It is just that now you need to work on your punctuation. What is punctuation? कहाँ आपको pause लेना है, कहाँ पे आपको आवाज को थ्रो करना है, ये अभी नहीं करना है, ये समय के साथ करना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम कभी जान नहीं पाते कि मेरा उच्चारण भी सही है, मेरा इंटोनेशन भी सही है, तो फिर गड़बड़ क्या है? फिर आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स कहाँ पे आपको पॉज देना है, कहाँ पे आपको उस आवाज को और थ्रो देना है, कहाँ पे आपको उसको धीमा करना है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट हमें पता होना चाहिए। एक जो अच्छा वक्ता होता है, जो मंच पे आके बोलता है, अपनी बात बड़ी प्रभावशाली तरीके से बोल सकता है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस पर्सन नोज हाउ टू गिव राइट पंक्चुएशन। एक बात बोल के 1 सेकंड का भी आप पॉज लेते हैं तो आप उस बात को लोगों के अंदर सोक इन करने का, एब्जॉर्ब करने का समय देते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट, राइट? सो अच्छा था आपका, बहुत अच्छा बोला आपने, बट आपको बस पंक्चुएशन पे थोड़ा थोड़ा काम कीजिएगा। आई प्रिपेयर मील्स, क्लीन द हाउस एंड हेल्प माई चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज, राइट? तो जहां जहां कॉमा है वहां पे आप थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसका फायदा क्या होता है कि सुनने वाले को समय मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने का। अदरवाइज आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, उस पर और हम काम कर सकते हैं। ओके, चलिए धीर जी, विल आस्क यू टू रीड द सेम टेक्स्ट वंस फॉर अस। Hello, my name is Anjali. I am 40 years old. I am a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals, clean the house, and help my children with their studies. I enjoy cooking and often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, I like to read books and listen to music. I am very active in my community and often participate in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. Family is very important to me and I love spending time with them. We often go on picnic and outing together. I am very organized and manage my time well. Nice to meet you. Okay, wonderful. I think somewhere you also you can also relate yourself because you are very organized and you manage your time very well. I think that's something that you told about yourself previously. So it was largely very nice. I think just this little word OUR. Could you read that, reread that for us once? R. R. Yeah, exactly. R. That's what you have to say. R. That was, otherwise it was very nice. So I'll just read the whole thing for you once from Anjali's perspective, how she would have said had she spoken the whole thing. She would have said, "Hello, my name is Anjali. I'm 40 years old. I'm a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals, clean the house, and help my children with their studies. I enjoy cooking and often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, I like to read books and listen to music. I am very active in my community and often participate in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. Family is very important to me and I love spending time with them. We often go on picnics and outings together. I'm very organized and manage my time well. Nice to meet you." Right? So pronunciation अच्छा है आप लोगों का काफी हद तक. I feel that you have a good pronunciation. It's just the punctuation आप समझ गए, जहाँ पे पूर्ण विराम है, जहाँ पे कॉमा है, इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, so that it becomes quite impressive. One, हम एक तो स्पीड से नहीं भाग रहे, हालांकि मैं थोड़ा सा स्पीड से बोला था, I could have taken more of time, but आप थोड़ा धीमे बोलिएगा और साथ में कॉमा, पंक्चुएशन इन पे ध्यान दीजिएगा. Is that okay otherwise? क्लियर है सभी को? ओके, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी गिव यू सम होमवर्क. आपको इन 3 लोगों का जो ये टेक्स्ट है इंग्लिश का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में मंडे को. अंजलि का, प्रिया का और जॉन का, राइट? ये तीनों टेक्स्ट आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं. व्हेन समवन सेज आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड होम, तो इसका क्या मतलब है, सारे आप वाक्य का अनुवाद करेंगे हिंदी में, राइट? इज दैट ओके? All right, so with that, we'll quickly move ahead. There is something that I wanted to do, but I will put it on hold right now. So it was planning a weekend with friends, but today I would want to work on tenses. So अगर हम एक बार tenses clear हो जाएंगे तो शायद इस dialogue को हम बेहतर रूप से समझ पाएंगे. तो इसको अभी हम hold पे डालेंगे. इसको हम अगले वाला जो week है उसके session में लेंगे. तो आज हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट पहले मैं आपको कुछ expressions सिखा देता हूँ और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे. आज tenses पे चर्चा करेंगे. तो उससे पहले कुछ expressions.
कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो हमें पता होने चाहिए अंग्रेजी के अंदर, बहुत हैंडी हैं, बहुत ही इजी हैं और हम कहीं पे भी उनको इस्तेमाल उनका कर सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। तो एक बार आप अच्छे से स्क्रीन देख लीजिए, मैं फिर उसके बाद उनको आपसे पढ़वाता हूँ और आपसे मीनिंग पूछता हूँ, इफ एट ऑल यू नो देयर मीनिंग्स। So we have this first one. It reads, I'll take this one, the blue color. Okay. So where there is a will, there is a way. बताइए क्या मतलब है इसका? Where there is a will, there is a way. Anyone? जहाँ उम्मीद है वहाँ चाहत। हाँ, जहाँ उम्मीद है हाँ, थोड़ा सा और इसको हाँ बताइए नीलम। जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह, एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट, या बिल्कुल, और जहाँ उम्मीद है वहीं राह है, जहाँ आपने थोड़ी सी होप रखी है वहीं पे आपको रास्ता मिलेगा, दैट्स ट्रू। सो विद दिस विल देयर इज अ वे. Whenever you feel demotivated, whenever there are people around you who feel little depressed, you can always tell them, have some faith in yourself, and as we say in English, where there is a will there is a way, you will be able to do it, right? Motivate करने के लिए बहुत जरूरी, तो इसको हमेशा आप यूज किया कीजिए, धीरे धीरे आपको इसको मेमोराइज करना है और आपको इसको याद करके इसको काम में लेना है. The next one, this is number 1. Number 2, चलिए मैं पूछ लेता हूँ, नीलम राठौर जी इसको पढ़ दीजिए और फिर इसका एक बार ट्रांसलेशन बता पाएंगे आप? नीलम राठौर जी, यहाँ पे, आई एम सॉरी, दिस इज अ लिटिल चेंज, आई जस्ट अ सेकंड. All that glitters is not gold. Yeah. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं थी. All that glitters is not gold. क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से आप? नीलम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? What does that mean? Means, चमकने वाली चीज मतलब जरूरी नहीं कि जो मतलब वही हो। सर ये स्टेक वाली जो स्टोरी इसके अंदर आता है ना, वो उसका फंस जाते हैं, उसका वो बुश के अंदर उसके जो Right. मतलब, हाँ उसकी सीन वगैरह फंस जाते हैं, वो वाली स्टोरी में है सर ये। Okay, तो मैं इन जनरल बताइए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, मतलब कहने का क्या मतलब है? तात्पर्य क्या? एनीवन? धीर जी, if you want to try. नीलम जी from जलगांव, anyone? दीपाला जी, what does that mean? हर चमकने वाली चीज, बाहर से दिखता है वो जरूरी नहीं अंदर से जलता है। एग्जैक्टली, कि बाहर से तो बहुत चमचमाता दिख रहा है पर अंदर कितनी उसमें समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, who knows? All that glitters is not gold. यानी हमको लगा वहीं जाएंगे, बहुत शानदार है वो जगह, वहां खाना खाएंगे, but maybe the way they prepare is not good, so you told them all that glitters is not gold, right? यानी अंदर का जो सच है वो तो कुछ और ही है. सो वहां पे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. वो चमक रहा है बट वो सोना नहीं है, यानी वो उससे कम वैल्यू का है. ठीक है, दूर से हमें ऐसा लगा. चलिए तीसरा, नीलम जी फ्रॉम जलगांव पढ़ दीजिए, एंड इफ यू कुड हेल्प अस विद द मीनिंग. हर बादल में एक आशा की किरण है। हाँ, हर बादल में एक आशा की किरण है. वेरी गुड. और अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे इसको बताइए? Every cloud has a silver lining. वेरी गुड. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. दैट्स करेक्ट. यानी कि जब भी विषम स्थिति होती है, कठोर परिस्थिति होती है, उसमें फिर भी एक जो उम्मीद की किरण होती है, राइट? दैट्स ट्रू. सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. देयर इज सम होप इन एवरी डार्क सिचुएशन. एग्जैक्टली, राइट. सो आप हमेशा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर बादल की भी एक किनारी पे, हम देखते हैं बारिश के दिनों में जब ऐसा होता है फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अगर आपको होप दिखती है तो यू सी अ सिल्वर लाइनिंग, व्हिच मींस देयर इज ऑलवेज होप इन थिंग्स दैट सीम टू बी होपलेस. ऑलराइट, सो इनको आप काम में लीजिएगा. दीपाला जी आप ट्राई कीजिए, पढ़ दीजिए. एग्जैक्टली, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अ स्टिच, स्टिच समझते हैं आप? स्टिचिंग करना होता है, टांका लगाना. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्या मतलब है इसका? थोड़ा गेस कर दीजिए दीपाला जी, क्या लगता है आपको? अ स्टिच, एक स्टिच लगाया, एक हमने टांका लगाया, ऑन टाइम. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब क्या गेस कर सकते हैं? समय पर किया गया कार्य ज्यादा देर से हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. नीलम जी वांट टू शेयर समथिंग? नीलम राठौर जी, आपको लगा? I think जैसे कि stuck the iron while it is hot. Yeah, exactly. So that's true. Yeah, so it's like, strike the iron while it is hot. So या उसके अंदर जो हमारा एफर्ट होता है वो अपॉर्चुनिटीज को सीज करने का होता है. आप जो कह रहे हैं ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट, मैं लिख देता हूं. इन्होंने बताया है एक एक्सप्रेशन, स्ट्राइक द आयरन
while it's hot. देखिए, जो लोहा होता है जब गर्म होता है तब आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो शेप ले लेगा. तो नीलम जी ने एक्सप्रेशन बताया, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट, मतलब हॉट का मतलब यह है कि जैसे आपको मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को आप सीज कर लीजिए, पता नहीं फिर वो मौका मिले ना मिले. वो है इसका कॉन्टेक्स्ट, राइट. इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है. इसका मतलब ये होता है कि जो दीपाला जी ने कहा कि जो स्थिति है उसमें आपने समय पे टांका लगा दिया तो वो 9 बच जाएंगे, यानी कि आपके और जो काम खराब होते वो बच जाएंगे. सब समय पे उसको दुरुस्त कर लीजिए. आप समझ रहे हैं, उसको दुरुस्त कर लीजिए समय पे, अन्यथा आपको और दिक्कत आएगी. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हम कहते हैं हाँ अरे इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाद में इसको मैं लेके जाऊंगा मैकेनिक के पास, अभी टाइम ही नहीं है. फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ते हो गए, फिर हम जाते हैं और दिक्कत आने लग जाती है. तो इसलिए हमें समय रहते हुए चीजों को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ये है इसका मतलब, राइट. और जो आपने कहा नीलम जी वो कुछ हद तक मैच करता है, बट यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की बात कर रहे हैं. आप समझ गए, यहाँ पे ऐसा कोई तात्पर्य नहीं, यहाँ पे है कि भाई समय रहते तुम कर लो. सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये इसका मतलब है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि हम वेट ना करें कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे. कोई हमें कई बार होता है ना, हम जनरली हाउसवाइफ्स को आई एम श्योर कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ वाइज, अभी ठीक है चल रहा है, नो दे आर ऑलवेज लाइक सो सैक्रिफाइसिंग एंड सो accommodating, they hardly pay attention to their health at times. They're like नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी ये काम अटक जाएगा वरना वो काम अटक जाएगा. So this is what the expression says, that stitch in time saves 9. So जहां पे जिस चीज की फटाफट उसको मेंड करना है, उसको दुरुस्त करना है, कर लीजिए. हेल्थ है या कोई आपका और कोई कंसर्न है, ताकि वो और खराब ना हो. Is that okay everyone? So a stitch in time saves 9. All right, and the next one, I see we have Harpreet ji, is that so? I don't know who has joined. Is that so, Harpreet ji? You have joined? Preet. Oh yeah, Gurpreet ji. Gurpreet ji, how are you doing? I'm fine, sir. Okay, आप आए नहीं थे तो आपका नाम मैंने ऊपर नीचे कर दिया, so I'm sorry for that. Gurpreet ji, how are you doing? No, Yeah, not an issue, sir. not an It's issue. okay. Okay, so be regular, so that will give us more of clarity of your name. So I just even it's written Kaur and Preet, so I couldn't make your name out. All right, not a problem. We'll carry on. So अभी हम कर रहे हैं कुछ फटाफट से अंग्रेजी के expressions, और इसमें हम देख रहे हैं the fifth one. So if you could read this one for us, Gurpreet ji. पढ़ सकते हैं 5वां, क्या लिखा है? Anyone? चलिए, I'll request Dheer ji to read it for us. Child dreads fire. Okay, so Gurpreet ji has already read. A burnt child dreads fire. क्या मतलब है इसका? Any guesses? Anyone? A burnt child dreads fire. Child एक बच्चा है, समझ में आ गया. Burnt यानी जो जल गया है किसी भी कारण से, मतलब अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं. आई होप किसी के साथ ऐसा ना हो, बट स्टिल ये है. ड्रेड्स होता है डरता है, घबराता है. किससे डरता है वो? फायर से. सो क्या क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या लगता है आपको हिंदी में? दूध का जला छाछ बिल्कुल, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. तो आप जब दूध पीते समय हमारी जीभ जल जाती है, मुंह जल रहा है, भाई अब तो तुम छाछ भी ला के दोगे तो मैं फूंक मार के उसको ठंडी करके पीऊंगा, राइट. सो एग्जैक्टली दैट्स द सेम थिंग. सो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर. तो ये आप यूज कर सकते हैं, यानी भाई मेरे को तो बड़ी घबराहट है, मेरा अनुभव सही नहीं रहा, मेरे को तो वहां नहीं जाना, वहां पे हम गए थे वहां अच्छा अनुभव नहीं था. सो you can always say, as we say that a burned child dreads fire, I cannot retry. मैं फिर से इस पे ट्राई नहीं कर सकती. ठीक है, क्लियर है सभी को? सो एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सिंपल है, इनको आप लिख लीजिएगा. और नीलम जी ने भी एक हमें बताया, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट. सो जैसा ही जब लोहा जो गर्म होता है उस पर आप हथौड़ा मारिए, ताकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को सीज करिए, उनका अधिकतम आप उपयोग करने का प्रयास कीजिए, जब मौका मिले तब उसका. जैसे आपको 1 बजे क्लास थी, फिर भी आपको लगा पता नहीं बाद में होगी नहीं होगी, ये है वो है, तो आपने अच्छा किया आप आ गए, विच इज ग्रेट. यू हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम कर सके उतना हमें करना चाहिए, ये इसका संदेश है. तो मैं एक बार आपके लिए फटाफट पढ़ देता हूँ सारे एक्सप्रेशंस अंग्रेजी के. Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हो सकता है कि उसके अंदर कोई भेद छुपा है, कोई समस्या छुपी है. Every cloud has a silver lining का मतलब है कि हर परेशानी के समय में भी एक उम्मीद की किरण हमें हमेशा नजर आती है. आगे a stitch in time saves 9 का मतलब है कि समय रहते हमें चीजों को दुरुस्त कर लेना चाहिए, अन्यथा हमारे को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. आगे है a burnt child dreads fire. A burnt child dreads fire मीन्स कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. और अंत में स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट. सो जब लोहा गर्म हो तब हमें उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, विच मीन्स
You have to make most of the opportunities when they are presented to you. बाद में हमें मौका मिले ना मिले, who knows. चलिए, I can see Samar Chabra ji. Who's that? Could you just unmute and tell your name because we are not too sure who you are. Samar, okay, that person has left. Okay, not a problem. All right, so we'll carry on. So यहाँ तक clear है आप सभी को? Is that okay, everyone? ठीक है? Right? Okay. So you'll have to use these expressions. इसको इकट्ठे करके स्टोर करके रखने से कोई सेंस नहीं. You'll have to use it. आज अपने घर में काम में लीजिएगा और मुझे बताइएगा सोमवार को हमने ये 4-5 बोले और लोगों ने या हमारे आसपास में सबने हैरानी से पूछा तो हमने मीनिंग बताया उनको. राइट? अब काम में लीजिए ये, फिर आप कहाँ काम में लेंगे? अपने घर पे काम में लीजिए, बताइए, समझाइए उनको. बताइए आज मैं आपको बताती हूँ ये 6 एक्सप्रेशन अंग्रेजी के और आप बताइए आपके घर के लोगों से कि क्या मतलब है इसका. लेट्स डू अ लिटिल क्विज विद आवर फैमिली मेंबर्स. ओके, इज दैट ओके? राइट, लेट्स मूव अहेड. अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंसेस, जो जनरली मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे को वो एक बहुत ही टेंस्ड हमारा एक थॉट प्रोसेस हो जाता है टेंसेस को लेके. सो आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू. All right, I'll just close this up. Okay, just a second, I'll go to, yeah. Okay, I'll just try to do over here. चलिए, so हम सबसे पहले हम सीखेंगे simple present tense, right? आप अपनी नोटबुक बना के रखिए एवरीवन, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा. वैसे मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूं, वैसे मैंने भेज भी दिए हैं, बट फिर भी आप भी लिखिएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ये ऐसी आपके टेंसेस को दर्शाता है जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं. मैं वॉक पे जाता हूँ, वह गाना गाती है, हम टीवी देखते हैं. इस प्रकार की बातें जो रोजाना होती है हम उसको दर्शाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे. उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं वर्ब टू ईट. I'll change the color, perhaps it will be easier. I eat, you eat, पर he, she और it के साथ हमेशा आता है eats, we eat और अंत में they eat. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दीपमाला जी कि हम he, she और it के अंदर इसमें s लगाते हैं एक्स्ट्रा. बस ये एक एक्सेप्शन है. अन्यथा हमारी जो मुख्य क्रिया है टू ईट, उसका ईट उठा लीजिए और उसको रख दीजिए आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, वी ईट एंड दे ईट. इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं. मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, वह लड़का भी आ गया, वह लड़की भी आ गई, वो निर्जीव चीज भी आ गई, वो पशु भी आ गया इट के रूप में, वी हम सब आ गए और दे वे लोग सभी आ गए. एवरीवन हैज बीन इंक्लूडेड, राइट? सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन दैट वी हैव. इसमें एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है, एक और हम पहले एक वर्ब उठा लेते हैं, टू सिंग. चलिए धीर जी आप एक काम कीजिए, सिंग का आप हमें सुना दीजिए. टू सिंग की क्रिया आए से लेके दे तक. सॉरी सर. हाँ, आप टू सिंग जो क्रिया है ना, टू सिंग, जैसे टू ईट थी वैसे टू सिंग, इसको आप हमें आई के साथ क्या बोलेंगे, यू के साथ क्या बोलेंगे, बोल के बता दीजिए एक बार. टू सिंग, आई सिंग, यू सिंग, he sings, some. हाँ, he sings, very good, he sings. आगे she sung, it sung, नहीं नहीं, आप संग पे क्यों पहुंचे? sings, sings, S-I-N-G-S. we sing, हाँ, और अंत में they sing. they sing. तो कुल मिला के हमें क्या करना था? हमें सिंग, जो टू सिंग है ना क्रिया, गाना. गुरप्रीत जी, I'll request you to be on mute once. Okay, sir. Right, thank you. Right, so जो वर्ब है ना हमारा टू सिंग, उसमें जब आपको कोई कहेगा कि आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में उसको कॉन्जुगेट करना है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्जुगेट करना. कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप व्यक्ति के अनुसार अपनी क्रिया में परिवर्तन करते हैं. दैट्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन. इसको नहीं भी याद रखें तो भी कोई बात नहीं, बट यू शुड नो दैट टू ईट डजंट स्टे टू ईट एनीमोर. आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, वी ईट और अंत में दे ईट. मैं खाता हूं, तुम खाते हो, वह खाता है, वह खाती है, वह खाता है, जो भी पशु है, हम खाते हैं और वे खाते हैं. इस प्रकार से मैं सुबह सुबह एक सेब खाता हूं. इन द मॉर्निंग आई ईट एन एप्पल. व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? ठीक है, तुम क्या खाते हो? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. यहां तक क्लियर है सभी को?
और जो अभी धीर जी ने बताया, इन्होंने सिंग जो गाने की जो क्रिया होती है इसको इसी रूप में बोल के बताया, आई सिंग, यू सिंग, बट इन्होंने कहा ही सिंग्स, शी सिंग्स, इट सिंग्स, वी सिंग और अंत में दे सिंग। ये हमें ध्यान रखना है कि ही, शी और इट के साथ में एस एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, सभी क्रियाओं के साथ ये होता है कि एक्स्ट्रा एस लगता है। पर कल हमें नीलम राठौर जी ने बताया था कि सर ईएस भी लगता है, ये आई थिंक धीर जी आपने कहा था। तो मैं बताता हूं वो कब लगता है, वो किस स्थिति में लगता है, जब हमारी क्रिया CH, SH, O, डबल S या फिर US में खत्म होती है। जैसे एक क्रिया लेते हैं वॉच, एक क्रिया लेते हैं वॉश, एक क्रिया लेते हैं गो, एक क्रिया लेते हैं पास, एक क्रिया लेते हैं फोकस। अगर आप ये क्रियाएं देखेंगे ना, टू वॉच देखना, टू वॉश धोना, टू गो जाना, टू पास पास करना मतलब कहीं से गुजरना या किसी को कोई चीज पास करना, टू फोकस ध्यान देना। इन क्रियाओं में आप ध्यान रखिएगा दीपमाला जी, नीलम जी, एवरीवन, धीर जी, I can call everyone's name, Gurpreet ji and everyone else, that you have to ensure that you put an extra E and S with he, she and it. उदाहरण के लिए हम एक बार CH वाला देख लेते हैं। I watch, मैं देखता हूं, मैं देखती हूं। You watch, तुम देखते हो, तुम देखती हो। But he watches, she watches और it watches। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन वापस से we watch हम देखते हैं और अंत में they watch हम वे देखते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। I watch, you watch, he watches, ES के साथ, she watches, ES के साथ, it watches, ES के साथ, we watch, normal, they watch, normal। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Is that okay? ये ध्यान रखना है। तो he watches, she watches and it watches। I watch, मैं देखता हूं। You watch, तुम देखते हो। He watches, वह देखता है। She watches, वह देखती है। It watches, वह वस्तु या वह पशु देखता है। We watch, हम देखते हैं। They watch, वे देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दीपमाला जी? आपको क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नीलम राठौर जी समझ रहे हैं आप? There's someone, Samar Chhabra. Who's that? Samar Chhabra ji, can you unmute and tell us who you are? Mr. Samar Chhabra, I don't know, कोई दूसरे नाम से अगर आप ज्वाइन करें तो आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए, so that we know if you are the one who's enrolled in this course. Samar Chhabra ji, can you hear me? I don't think so. I think this person is not able to hear what I'm trying to say. So, nevertheless, okay. So we'll carry on. Okay. So इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। फटाफट से हम सुन लेते हैं आपसे एक एक से फटाफट से। SH में वॉश है। चलिए धीर जी आप सुना दीजिए पूरा कॉन्जुगेशन वॉश का। I wash, Right. you wash, Right. he washes, she washes, it washes, we wash, they wash. Very good. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash and they wash। They wash. आपने कहा ये मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, ये आधे घंटे में कपड़े धो देती है। It washes in half an hour। It washes in half an hour। आधे घंटे में धो देती है। तो वहां पे इट आ गया। चलिए ओ के साथ एक शब्द है दीपमाला जी आपके लिए, गो। गो का सुनाइए, कैसे आप बोलेंगे? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, they go. Very good. I go, you go, but he goes and she goes and it goes and we go and you go। तो ही शीट में GOES, GOES और GOES, राइट? ये ध्यान रखना है। इसी परिवार का एक और शब्द होता है DO, do। I do, you do, but he, she और it के साथ क्या आता है? Does। He does, she does and it does, and then अंत में आपको पता है we do and they do। इसको याद रखिएगा बिकॉज ये हमारे को भी हेल्प करेगा यहाँ पे। आपसे चेक कर लेते हैं नीलम जी फ्रॉम जलगांव, आप ट्राई कीजिए पास, PASS। I pass, you pass, he passes, she passes, it passes, we pass, they pass। Absolutely, बिल्कुल ठीक है। I pass, you pass, he passes, she passes, it passes, we pass and they pass। ओके, अंत में फोकस का हम देख लेते हैं नीलम राठौर जी आपके साथ। नीलम जी, are you there? नीलम जी, yeah। Yes, sir. Focus. हाँ, फोकस का। I focus, Yeah. you focus, they focus, he focuses, Yeah. she focuses, it focuses। वेरी गुड। I focus, मैं ध्यान देता हूं। I focus,
You focus, he focuses, she focuses, it focuses, we focus और अंत में they focus, right? चलिए, and I'll quickly ask Gurpreet ji. Gurpreet ji, could you do for a regular verb for us? And the verb is to, let's take a verb, I'll get you from here. And the verb is to write, लिखना, to write. बताइए. I write, you write, he writes, she writes, it writes, we write, they write. Perfect. WRITE, right? WRITE में खत्म होता है तो I write, you write, but he writes, she writes and it writes. S लगा दिया, एक्स्ट्रा आपने ES नहीं लगाया, ऑलरेडी E था तो सिर्फ S लगाया, बिल्कुल ठीक है. और अंत में we write हम लिखते हैं and they write वे लिखते हैं. यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, ये इनका आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से. आप चाहें तो इसका आप वीडियो में आपको भेजूंगा, तो आप वीडियो में से भी नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं. अगर यहाँ पे भी नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं. इसी कैटेगरी के अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर कई बार हमारी क्रिया के अंदर जैसे हमारे पास होता है FLY, CRY, राइट, TRY. अगर हमारी क्रिया Y में खत्म हो रही है, राइट, और उसके पहले जो शब्द आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, सॉरी, जो लेटर आ रहा है, दैट्स नॉट अ वोवल, वो कोई कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में जैसे LY, RY, तो इसके अंदर हमारे को ही, शी और इट के केस में यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, सिर्फ इन्हीं के केस में IES लगाना होता है. IES, ठीक है, ध्यान रखिएगा, IES लगाना होता है. सिर्फ S ना लगाएंगे ना ES लगाएंगे, लेकिन IES लगाएंगे. तो फ्लाई, फ्लाई का चलिए दीपाला जी आप सुना दीजिए. I fly, I fly, I fly, you fly, he flies, she flies, it flies, we fly, they fly. very good. I fly, FLY, you fly, FLY, he flies, FLIES, she flies, FLIES, and it flies, ये उड़ता है, it flies, FLIES, but we fly, FLY, and they fly, FLY. ठीक है, इसी परिवार का cry है, to cry रोना, और try प्रयास करना. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इस रूल को. और अंत में एक और रूल है, वो ये कहता है कि ऐसे शब्द जो Y में तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनके पहले हमारे पास एक वोवल आता है, तो उसमें चेंज होता है. उदाहरण के लिए दो ही शब्द हैं हमारे पास, से एंड प्ले. इसमें ध्यान रखिएगा कि Y आने के कारण आप ये मत सोचिएगा कि क्या हमें IES लगाना है, नहीं. A आने के चक्कर में Y के पहले हम लगाते हैं सिर्फ S. उदाहरण के लिए he, she एंड it में आ जाएगा says, या फिर he, she और it में आ जाएगा plays, PLAYS. अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट. Alright, so we'll carry on with that. So he says, मैं आपको बताता हूँ कि जो say होता है कहना, to say, इसको इस प्रकार से चलाते हैं. I say, मैं कहता हूँ, you say, तुम कहते हो. he के साथ ध्वनि में थोड़ा परिवर्तन है. he says नहीं बोलते, he says, he says, she says, it says, again we say and they say. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उच्चारण पे. I say, you say, but he says, she says and it says, and then we say and they say. स्पेलिंग में यही है SAY, लेकिन he, she और it में SAYS, और नीचे we और they में अगेन SAY. क्लियर है सभी को? ये आप ध्यान रखिएगा. इसी प्रकार से प्ले होता है खेलना. I play, you play, but he plays, she plays and it plays, and then we play and then they play. क्लियर है यहाँ तक? ये आप ध्यान रखिएगा. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें विशेष बात जो ध्यान रखने की है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसमें डू और डज लगा सकते हैं, राइट. डू और डज कैसे लगता है? या तो आप कह दीजिए I eat, you eat, then we have he eats, she eats and it eats, और उसके बाद we eat और अंत में they eat. इसमें एक और आपके पास ऑप्शन है, आप ध्यान रखिएगा. आप चाहें तो इस चीज को ये कह सकते हैं इस प्रकार से. मैं आपके लिए दूसरे कलर में लिखता हूं ताकि आपको वो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करें. I do eat, I do eat, you do eat, he, she, it does eat, और अंत में we do eat, और बिल्कुल अंत में they do eat, they
डू ईट। आई थिंक समय को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ आज सिंपल प्रेजेंट पे चर्चा करेंगे, अदरवाइज विल बी टू एम्बिशियस और हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इसको हम नेगेटिव में कब करेंगे, वो तभी करेंगे जब हमको डू और डज लगाना आता होगा। तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा लाइट चलते हैं। सो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आई ईट का समान रूप ये भी है आई डू ईट। यू ईट का समान रूप है यू डू ईट। ही ईट्स का समान रूप है ही डज ईट। शी ईट्स का समान रूप है शी डज ईट। इट ईट्स का समान रूप है इट डज ईट। और वी ईट का समान रूप है वी डू ईट। और अंत में दे ईट का समान रूप है दे डू ईट। यानी आपके पास ये लिबर्टी है, ये फैसिलिटी है कि आप इसके अंदर डू और डज लगा के भी अपनी बात रख सकते हैं। डू और डज लगा के इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से ही शी और इट में ईट्स आता है, उसी प्रकार से ही शी और इट में यहाँ पे डज आता है। एक बात जो ध्यान रखने की है कि जब हम डू और डज लगाते हैं तो हमारी मुख्य क्रिया वापस से मुख्य क्रिया बन जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर वो ईट 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 और ईट के रूप में ही चलती है वो। फिर उसमें ईट्स या ईट कुछ और नहीं बनेगा, सिर्फ ईट 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 चलेगा। ठीक है, जब आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है तो फिर मुख्य क्रिया रहेगी। डू यू ईट? यस आई डू ईट, आई डू ईट, राइट। क्योंकि जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना तब आपको डू और डज की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप प्रश्न बनाएंगे तब आपको डू और डज की आवश्यकता पड़ेगी। तब हम मुझसे पूछेंगे कि ये डू कहां से आ गया, ये डज कहां से आ गया, ये प्रश्न बनाया तो डू क्यों बोला हमने, ये जब नेगेटिव बनाया तो डू क्यों बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आई ईट को आई डू ईट भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फटाफट से सुन लेते हैं, अभी है हमारे पास कुछ मिनट। फटाफट से सुनने से पहले मैं एक बार इसका नेगेटिव, इसका प्रश्नवाचक बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें एक साथ क्लियर रहेंगी। Let's do one thing. I'll try to move to another page. Let me see if I've got some space over there. चलिए इसको यहीं पे लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे बाद में। ओके, अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आई ईट आई डू ईट होता है। सभी ओके इस चीज से? अच्छा, कोई नेगेटिव बना सकता है? मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाती हूं। एनीवन अनम्यूट करके बताइए। I don't eat. वेरी गुड। आई डोंट ईट या फिर आई डू नॉट ईट। ये आपको बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये चीज, राइट? थोड़ा सा पेज से बाहर जा रहा है, पर आई एम श्योर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आई डोंट ईट जो है उसको हम आई डू नॉट ईट भी बोल सकते हैं, राइट? ये नीलम जी ने सही बताया, आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट। ये डू कहां से आया है? ये यहां से आया है। अब आप एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि आई ईट का नेगेटिव आई ईट नॉट नहीं होता, आई नॉट ईट नहीं होता, आई डू नॉट ईट होता है या फिर आई डोंट ईट होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इस आई ईट के अंदर नॉट लगाने से नेगेटिव नहीं बनेगा। आई डू ईट का नेगेटिव होता है आई डू नॉट ईट या फिर आई डोंट ईट, तब नेगेटिव बनता है। इस वजह से हमें डू की आवश्यकता पड़ती है नेगेटिव बनाने के लिए। तो पहले से आपको डू पता होना चाहिए पॉजिटिव में भी। इसी प्रकार से चलिए फटाफट से धीर जी आप बताइए, यू डू ईट का नेगेटिव? यू डू You ईट, don't eat. यू डोंट ईट या फिर You do not eat. वेरी गुड, यू डू नॉट ईट, वेरी गुड। नीलम राठौर जी आप ट्राई कीजिए, ही ईट्स, शी ईट्स या डज के साथ ही डज ईट। He does not eat. वेरी गुड, She does not eat. It does not eat. वेरी गुड। ही शी इट डज नॉट ईट या फिर डजंट ईट। ये भी आप समझते होंगे, डजंट भी बोलते हैं इसको, डजंट। तो ध्यान रखिएगा, डज नॉट बोलिए, डजंट बोलिए, एक ही बात है, राइट? वो नहीं खाता है, मैं हम इसको इतना खिलाते हैं पर खाता ही नहीं है। ही डजंट ईट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं खाता, या ही डज नॉट ईट। ठीक है, तो ये जो डज है वो यहां से आया था, इसलिए नेगेटिव में पाया गया है। कभी भी ही नॉट ईट्स या ही ईट्स नॉट नहीं बोलते अंग्रेजी में, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। डज के कारण इसका नेगेटिव बनेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? चलिए who's left? I think या गुरप्रीत जी आप ट्राई कीजिए। हम नहीं खाते हैं। गुरप्रीत जी, हम नहीं खाते हैं। कैन यू हियर मी? या Yes, sir. बताइए। Sorry, sir. Actually, my daughter is too small now. या अंडरस्टैंड, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लीज बताइए, इफ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग, बताइए। वी डू ईट का नेगेटिव? We do not eat. वी डू नॉट ईट, वेरी गुड। और एक और ऑप्शन क्या हो सकता है? वी डोंट, वी we डोंट, don't eat. वेरी गुड, वी डोंट ईट। दोनों आपको बोलने आने चाहिए, बिकॉज अगर आपको जल्दी जल्दी बोलना है तो वी डोंट ईट, वी डू नॉट ईट, दोनों ठीक है।
आप एक पिक कर सकते हैं लेकिन सामने वाला कुछ भी बोल सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू गुरप्रीत जी, यू कैन बी ऑन म्यूट नाउ। थैंक यू। और लास्ट में दे डू ईट का नेगेटिव whom didn't I ask? I've asked everyone. कोई रह गया, से पूछा नहीं मैंने। दीपाला जी आपसे नहीं पूछा? हाँ बताइए। They do not eat, they don't eat. वेरी गुड, दे डू नॉट ईट या फिर दे डोंट ईट, बहुत बढ़िया, दे डोंट ईट। चलिए, ये आपको समझ में आ गई बात, दे डोंट ईट, दे डोंट ईट। तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हमारा नेगेटिव बनता है। सिंपल प्रेजेंट पे चल रहे हैं अभी, अब आगे तो गए नहीं हम, ना कंटिन्यूस पे गए, ना हैव वाले पे गए, ना सिंपल पास्ट पे गए, कहीं नहीं गए अभी तो, सिंपल प्रेजेंट पे, एकदम वर्तमान वाले पे। तो हम समय लेंगे आराम से और अगले हफ्ते तक इसको कैरी ऑन करेंगे, डोंट वरी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और आखिरी में जस्ट टू रैप अप, आई जस्ट टेक 5 more minutes, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम, वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स, 3-4 मिनट है। तो इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, राइट, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करते हैं, ये है नेगेटिव और NEGATIVE नेगेटिव, नेगेटिव, और ये था पॉजिटिव, अफर्मेटिव बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कुछ पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, और नेगेटिव होता है नेगेटिव, जो ना के अंदर होता है। और प्रश्न बनता है, आपको याद है प्रश्न कैसे बनता है, क्या तुम खाते हो, बताइए, कौन ट्राई कर सकता है, अनम्यूट करके बताइए, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पिज्जा खाते हो, क्या तुम, Do you eat? वेरी गुड। अब आप सबके दिमाग में ऑलरेडी था डू यू ईट, सबको डू पता था। अब ये डू कहां से आता है, ये यहां से आता है, ये डू है जो हम लेके आए हैं, शुरू से लेके आए थे, यहां से लेके आए थे, तो डू यू ईट, वेरी गुड। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, क्या वो खाता है, बताइए एनीवन, क्या वो लड़का जो उसकी बात है, क्या वो पिज्जा खाता है, एनीवन, Does he eat pizza? हाँ बताइए, डू ही ईट्स पिज्जा या डू ही ईट पिज्जा या डज ही ईट्स पिज्जा या डज ही ईट पिज्जा। Does he eat pizza? ओके, नीलम राठौर जी कह रहे हैं डज ही ईट पिज्जा। कोई है जो कहता है कि डज ही ईट्स आना चाहिए क्योंकि ही के साथ ईट्स आता है, एनीवन? Does he eat pizza? ओके चलिए, मेरे गलत वाक्य पे गुरप्रीत जी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो मैंने पहले ही कह दिया कि वाक्य गलत है, तो उस पर सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज नीलम जी ने जो कहा वो सही है, डज ही ईट पिज्जा, क्योंकि जब डज लगा दिया है तो फिर हमें क्रिया का मुख्य रूप दैट इज ओरिजिनल फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है गुरप्रीत जी, समझ में आ गया आपको? डज ही ईट, क्योंकि हम क्या इतना बोल देते हैं ही ईट्स ही ईट्स ही ईट्स कि हमारा दिमाग उसको डज ही ईट्स निकालता है, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, डज ही ईट, एग्जैक्टली आपने जो कहा बिल्कुल सही, बिकॉज यू आर सो मच इनटू प्रैक्टिस ऑफ सेइंग ही ईट्स, शी ईट्स, ही प्लेज, शी सिंग्स, क्या वो गाती है, डज शी सिंग, ये है सही प्रश्न, ना कि डज शी सिंग्स, नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पे, डज ही ईट, डज शी ईट एंड डज इट ईट, और अंत में हमारे पास है डू वी ईट, हम खाते हैं क्या, और डू दे ईट, प्रश्न है डू दे ईट, राइट, डू दे ईट। चलिए, तो इतना था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से हम पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स बना सकते हैं डू और डज लगा के। बताइए, यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो आपका गृह कार्य क्या क्या है सुन लीजिए। पहला, आपको प्रिया, अंजलि और जॉन के जो टेक्स्ट है उनका अनुवाद करना है हिंदी में, पहला काम। दूसरा काम, आपको हर व्यक्ति को, मैंने आप देखिएगा पीडीएफ भेजें ग्रुप्स के अंदर, उनको खोलिएगा, उसके अंदर आपको सारी मुख्य क्रियाएं मिलेंगी। उन क्रियाओं में से आप अपनी इच्छा की कोई भी 4 क्रियाएं उठाएंगे आप सभी लोग, और उनका ये पूरा रूप बनाएंगे। I sing, you sing, he sings, she sings, it sings, we sing and they sing। पहली क्रिया उठाई है मैंने, to sing। फिर आपने आगे क्या लिखा, I do sing, you do sing, he does sing, she does sing, it does sing, we do sing and they do sing। I don't sing, I do not sing, you don't sing, you do not sing, he does not sing, he doesn't sing, she does not sing, she doesn't sing, it does not sing, it doesn't sing, we do not sing, we don't sing, they do not sing, they don't sing। फिर do I sing, do you sing, does she sing, does he sing, does it sing, does नहीं आएगा, do we sing, और अंत में do they sing। ये पूरी आपको मेरे को गाना सुनाना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा 4 क्रियाओं पे करिएगा, ज्यादा व्यस्त हो तो एक तो करके लाइएगा, इतना तो गृह कार्य करिएगा। वीकेंड है, सो एंजॉय योर वीकेंड and I wish you all the very best. Enjoy your weekend. Along with that, do make sure that you give some time to English, because that is how you will develop your competency. Any questions? Anyone who has anything to ask me? No, all is clear? Okay, so with that, I wish you a lot of luck, a lot of success, and I wish you a great weekend. See you on Monday at 11 in the morning. Thank you. Thank you,
sir. Thank you. Thank you, sir. Thank Have you. a nice day. Yeah, you too. Please have a great day. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.